اب دکانیں، بازار، شاپنگ مال سبھی کاروبار کھل سکیں گے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب حکومت کا 3 دن کا سخت لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بھی بازار اور مارکیٹس کھلیں گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اقدامات کی منظوری دے دی، جبکہ پنجاب حکومت نے 26 سے زائد صنعتیں کھول دیں۔ دفاعی اشیاء تیار کرنے والی انڈسٹری، پاور لومز، فوڈ انڈسٹری، لائف سٹاک، حفاظتی لباس، آئل اینڈ گیس پروڈکشن کمپنیز اور دیگر کاروبار بھی کھول دیے گئے۔ محکمہ اوقاف نے بھی وزارات کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ عید پر اپنے گھروں کو لوٹنے والے پریشان، دوسرے شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ نہ کھل سکی۔ ٹرانسپورٹرز حکومت سے نالاں، کہتے ہیں حکومت نے نصف مسافروں کے ساتھ ٹرانسپورٹ چلانے کا حکم دیا ہے، خرچے کہاں سے پورے کریں؟ جبکہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی۔ کہتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ٹرانسپورٹر سے دوبارہ بات کر کے حل کر دیا جائے گا۔ ادھر انٹر سٹی ٹرانسپورٹ آن لائن ٹیکسی سروس کو کام کی اجازت مل گئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں، ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کے لیے ماسک پہننے کی شرط لازمی قرار۔ بیس مئی سے جزوی ٹرین آپریشن بحال، انسداد کرونا کے ایس او پیز پر عمل درآمد کے ساتھ 30 ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ مسافروں کو آن لائن بکنگ سے ٹکٹس مل سکیں گے۔ مسافروں کے پاس اپنے ماسک، گلوز اور سینیٹائزرز اور صابن لازمی قرار۔ عید قریب آتے ہی بازاروں کی رونقیں بحال، انارکلی بازار میں عید کی شاپنگ کے لیے شہریوں کا رش۔ تاجر یونین اور وارڈنز اور پولیس ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے متحرک۔ تمام شاپنگ مالز میں داخلے سے پہلے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا لازمی قرار، جبکہ اچرا بازار میں تاجروں نے حکومتی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ بازار میں رات گئے تک دکانیں کھلی رہیں۔ تاجر کہتے ہیں کہ اگر شاپنگ مالز رات دیر تک کھولنے کی اجازت دی جا سکتی ہے تو مارکیٹس کیوں 5 بجے بند کریں؟ شاپنگ مالز، چھوٹی مارکیٹس بارے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری کیمپ آفس اجلاس کا انعقاد۔ صوبائی وزراء یاسمین راشد، راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال، چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی اور دیگر کی شرکت۔ شاپنگ مالز، چھوٹی مارکیٹس کے لیے نئے ایس او پیز جاری کرنے کی حکمت عملی طے کی گئی۔ ریسٹورانٹس ایسوسی ایشن کے وفد کی سینئر وزیر عبدالعلیم خان سے ملاقات، ریسٹورانٹس جلد کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ عبدالعلیم خان کی جانب سے ہمدردانہ غور کی یقین دہانی، بولے ہمیں لمبے عرصے تک سماجی فاصلوں اور دیگر شرائط کی پابندی کرنا ہوگی تاکہ کورونا کے خطرات سے بچا جا سکے۔ شہری ٹریفک جیم کی صورتحال سے شدید مشکلات کا شکار، عوام میلوں لمبی قطاروں میں خوار ہونے لگے۔ ٹریفک وارڈنز کی موجودگی بھی بے سود ثابت ہونے لگی۔ لاہور کی مختلف شاہراہوں پر گاڑیوں کی قطاریں، داتا دربار، انارکلی، ریلوے اسٹیشن، کشمیری گیٹ کے اطراف ٹریفک جیم رہنے سے شہری اذیت میں مبتلا رہے۔ کورونا متاثرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ، 24 گھنٹوں میں پنجاب کے 762 افراد میں کورونا کی تصدیق، تعداد 15,346 ہو گئی۔ لاہور میں کورونا کے 503 نئے مریض سامنے آ گئے۔ شہر میں 97 اموات ہو چکی۔ صوبے میں اب تک کل 260 شہری جان کی بازی ہار چکے، جبکہ انویسٹیگیشن برانچ میں 11 ملازمین میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ مختلف ریجنز اور اضلاع میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے ملازمین کے مرحلہ وار ٹیسٹ جاری۔ پنجاب حکومت کا عید پر 6 چھٹیاں دینے کا فیصلہ، 22 سے 27 مئی تک عید کی چھٹیاں دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف سیکرٹری کو نوٹیفیکیشن ارسال کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری کی منظوری کے بعد پنجاب حکومت عید کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔
बुज़दार हुकूमत का लाहौर की तरक्की पर भी फोकस। वज़ीर आला ने फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1 अरब 76 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। तामीराती लागत का तखमीना 1 अरब 9 करोड़ रुपए लगाया गया है। शफाफ टेंडरिंग से तामीराती लागत में 13 करोड़ की खतीर रकम की बचत की। लाहौर के शहरियों को मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का अज़्म। पंजाब में माली बहरान। शोबा तालीम के लिए नए माली साल में बजट 50% कम मुख्तस होगा। तालीम से वाबस्ता 4 महकमों ने तरक्याती बजट की मद में 134 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी। माली बहरान होने के बायस हुकूमत की शोबा तालीम में कम बजट मुख्तस करने की तलकीन। अंदरूनो बैरून मुल्क रिलीफ परवाजों का सिलसिला जारी। लाहौर एयरपोर्ट से 7 खुसूसी परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लाहौर से PIA की खुसूसी परवाज TK8322 कोयटा रवाना। कोयटा से परवाज TK8321 लाहौर पहुंची। लाहौर एयरपोर्ट पर एंटी कोरोना स्प्रे और डिसइंफेक्शन का अमल जारी। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी। पंजाब हुकूमत का 5 रोज में 6 अरब 53 करोड़ रुपए से जायद की माली इमदाद तकसीम करने का दावा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं 25 लाख गरीब खानदानों को 12,000 रुपए फी खानदान माली इमदाद फराहम कर रहे हैं। माली इमदाद को इंतहाई शफाफ तरीके से हकदारों तक पहुंचाया जा रहा है। ईद पर शहरी नए करेंसी नोटों से महरूम रहेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से नए नोट जारी न करने का ऐलान हो चुका, जबकि स्टेट बैंक की इमारत के बाहर नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी। एजेंट्स माफिया की चांदी हो गई। 10 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 300 रुपए, 20 वाली 350 रुपए इजाफी में फरोख्त की जा रही है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमे खुराक आमने सामने। एसोसिएशन की छापों के खिलाफ हड़ताल। सुबह भर की फ्लोर मिल्स बंद कर दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहते हैं 72 घंटे पिसाई के लिए गंदुम मिल्स में रखने की इजाजत दी थी। इंतजामिया मिल्स में मौजूद गंदुम जबरी तौर पर उठा रही है। महकमा सोशल सिक्योरिटी में ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद करना महंगा पड़ गया। ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को हेड ऑफिस से ट्रांसफर कर दिया गया। ऑडिट टीम को रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी, लेबर ऑडिट, पैरा और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सालाना टेंडर ओपन होने से कबल ओहदों से हटाया गया। लाहौर के 100 इंसाफ स्कूलों के लिए गैर मेयारी सामान खरीदने का खदशा। सामान 6 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम जारी की गई। पंजाब टीचर्स यूनियन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से सामान का मेयार चेक करने का मुतालिबा कर दिया। कोरोना से लड़ने वाली टाइगर फोर्स खुद कोरोना फैलाव का सबब बनने लगी। SOPs के दिफाते में कोरोना टाइगर फोर्स बगैर किसी हिफाजती इकदामात के जमा। वजीर आजम की टाइगर फोर्स थानों में तैनात हो गई। टाइगर फोर्स को थानों की हुदूद में तकसीम करके ड्यूटियां ली जाएंगी। शहर में लॉकडाउन के दौरान भी हवाई फायरिंग के वाकयात कम ना हो सके। बागबानपुरा के रिहायशी रऊफ उर्फ लाहौरी की हवाई फायरिंग। मुलजिम ने हवाई फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो के बावजूद पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई न की गई। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तफसीन के लिए अलहदा कब्रिस्तान की दरख्वास्त। जस्टिस शकीलुर रहमान खान ने हसनैन हैदर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की कब्रिस्तान के बैनुल अक़वामी कवानीन पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा। हाई कोर्ट ने फरीकैन के वकला को 21 मई को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब की जेर निगरानी पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी। इंसारी रोड इस्लामपुरा में राशन तकसीम किया गया। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कोरोना शुरू हुआ तो NGOs मुत्तहिद होकर इमदाद के लिए आगे आईं। मुश्किल वक्त में बहुत से घरों के चूल्हे बंद होने से बचाए गए। मुस्तहिकीन की इमदाद करने वाले पाकिस्तानियों की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की हिफाजती लिबास तकसीम करने के लिए तकरीब। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की हिदायत पर हिफाजती लिबास तकसीम किया गया। साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर की शिरकत। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। हुकूमत डॉक्टर्स, नर्सेज,
पैरामेडिकल स्टाफ को अलाउंस फराहम करे। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का 28 मई को यौम तकबीर मुल्क भर में मनाने का ऐलान। एहसन इकबाल की नून लीग सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत न सिर्फ कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है बल्कि मईशत को भी तबाह कर दिया गया है। मजीद कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब और शहजाद अकबर की मुहिम फॉरेन फंडिंग केस और आटा चीनी चोरों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मेडिकल कॉलेजेस के तलबा को बगैर इम्तिहान पास करने की इस्तदा मुस्तरद। मेडिकल यूनिवर्सिटीज का मुल्तवी सप्लीमेंट्री इम्तिहान जून से मुनक्किद करने का ऐलान। UHS में मेडिकल यूनिवर्सिटीज के VCs और कॉलेजेस इंतजामिया का इजलास मुनक्किद हुआ। वाइस चांसलर्स के मुताबिक बगैर इम्तिहानात तलबा को प्रोमोट करने से मेडिकल एजुकेशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। सिटी न्यूज नेटवर्क मुलाजमीन की बेहतर सेहत के लिए मुतहरिक। गेट्स फार्मा के ज़ेरे एहतमाम सिटी न्यूज नेटवर्क के हेड ऑफिस में स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। मुलाजमीन की जदीद तरीक़ाकार के तहत खून के नमूनों से स्क्रीनिंग की गई। मुलाजमीन के नफ्सियाती और जज्बाती पहलुओं के हवाले से भी बात की गई। स्क्रीनिंग करवाने वाले मुलाजमीन ने इंतजामिया के इकदाम को काबिले तहसीन करार दिया। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट की जानिब से थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के वालिदैन के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। रुकन सूबाई असम्बली सबा सादिक की इफ्तार डिनर में खुसूसी शिरकत। इफ्तारी का एहतमाम इलामा इकबाल टाउन में दस्तक वेलफेयर फाउंडेशन ऑफिस में किया गया। रुकन सूबाई असम्बली सबा सादिक ने दस्तक वेलफेयर फाउंडेशन और पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान से FPCCI के ओहदेदारान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को कोरोना रिलीफ फंड के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने FPCCI के अतिये को सराहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस वबा के दौरान सनतों को काम करने की सहूलत फराहम की है। सनतकार अपने मुलाजमीन के जरिए एहतियाती इकदामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अंजुमन ताजरान के मरकजी कायदीन कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की ताजिर रहनुमाओं के हमरा अनारकली अहमद ताजिरों और शहरियों में मास्क, सैनिटाइजर्स और ग्लव्स तकसीम किए। कहते हैं कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर से न सिर्फ कोरोना से बचा जा सकेगा बल्कि मईशत का पहिया भी रवा रखा जा सकेगा। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, खिलाड़ियों के दरमियान मैदान में वापसी। बायोस्कोर माहौल में दौरा इंग्लैंड का इनेकाद। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करवा के खिलाड़ियों को वापस लाने पर इत्तेफाक किया गया। PCB ने तैयारियों का आगाज कर दिया। और अंडर 12 और अंडर 18 एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जारी। सदर पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन सैयद फखर शाह कहते हैं तमाम खिलाड़ी घरों में इंफरादी तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोचेस खिलाड़ियों को रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस टिप्स देते हैं। खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रैक्टिस पर समझौता नहीं कर सकते।